السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو دوستو، آپ کے سامنے حاضر ہوں میں مجاہد الاسلام ادب کی روشنی یوٹیوب چینل کی جانب سے۔ دوستو، آج بی پی ایس سی ٹیچر 7th فیج کا جو کوالیفائنگ پیپر اردو ہے، چاہے 1 to 5 ہو، 6 to 8 ہو یا پھر 10th کے لیے ہو، سبھی کے لیے دوستو یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے۔ یہ اردو فار پی ٹی ایگزام کے لیے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والے ہیں۔ سبھی اس میں سوالات آبجیکٹیو ٹائپ کے ہوں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ 2-4 باتیں ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ آبجیکٹیو کی طرف روبرو ہوں گے۔ تو آئیے دوستو، پہلا ہے کیا کہتے ہیں، غزل عربی قصیدے کی تشبیب سے ماخوذ ہے۔ تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی کے جذبات سے ہے۔ اور اگلا ہے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، مطلع کہتے ہیں۔ قافیہ ہونا چاہیے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، کیا دوستو، اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مطلع شروع میں، مقطع بعد میں۔ میم کے بعد تو شروع میں آتا ہے، میم کے بعد قاف بعد میں آتا ہے، اسی لیے یہاں یہ بعد میں آتا ہے۔ چلیے، مطلع کی بات اگر کری جائے پھر اس میں بات ہم چرچا کریں گے آگے۔ اگلا ہے غزل میں کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 17 یا 19 اشعار ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی تعید نہیں ہوتی ہے۔ اور غزل ایک ایسی صنف ہے جس پر ہر ایک شعر پہ جو ہے اس کا کیا ہوتا جاتا ہے، بدلتا جاتا ہے۔ تو دوستو، پہلا کوشچن آپ کی اسکرین پر حاضر ہے، فٹافٹ آپ لوگ آنسر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اردو شاعری کی آبرو کسے کہا جاتا ہے، غزل کو، نظم کو، مرثیہ کو یا پھر قصیدہ کو؟ تو دوستو، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اردو شاعری کی آبرو غزل کو کہا جاتا ہے۔ غزل میں غزل کے اگر لغوی معنی اگر بات کری جائے تو عورتوں سے بات کرنا، کیا دوستو، عورتوں سے بات کرنا، عورتوں سے بات کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر دوستو غزل کا جو ہے، غزل کس لفظ سے نکلا ہے، تو ایک عربی لفظ غزال سے نکلا ہے۔ کیا؟ غزال سے نکلا ہے۔ اور غزال کے معنی اگر بات کری جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہرن کا بچہ یا پھر ہرن۔ دوستو، اگلی بات کرتے ہیں تو غزل کے اندر جو ہے دوستو، ہر لائن اس کا کیا ہو جاتا ہے، نہیں، ہر شعر کیا ہو جاتا ہے، اس کا بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ نظم میں جو ہے دوستو کسی ایک خاص موضوع پر بحث ہوتی ہے۔ اب مرثیہ دوستو، مرثیہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں مرثیہ لفظ رسا سے مستق ہے۔ کس سے دوستو؟ مرثیہ لفظ رسا سے مستق ہے۔ مرثیہ کسی شخص کی موت پر رنج و غم کا اظہار کرنے کو ہی ہم کیا کہتے ہیں، مرثیہ کہتے ہیں۔ اور قصیدہ کی اگر بات کری جائے تو قصیدہ جو ہے دوستو، اس میں ہجو یا مدح بیان کی جاتی ہے۔ ہجو کا مطلب کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے یا کسی کے خلاف باتیں بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ قصیدہ جو ہے بادشاہ وقت جو ہوتے ہیں ان سے انعام پانے کی لالچ سے قصیدہ گڑھے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، اگلا کوشچن ہے، اردو غزل کس زبان کی شاعری سے آئی ہے؟ کس زبان کی شاعری سے آئی ہے؟ عربی زبان کی شاعری سے، فارسی زبان کی شاعری سے، ہندی زبان کی شاعری سے یا پھر انگریزی زبان کی شاعری سے؟ تو اردو غزل جو ہے کس زبان کی شاعری سے آئی ہے؟ فارسی زبان کی شاعری سے یہاں پر آئی ہے۔ دوستو، کوشچن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے دوستو، اگر ہم ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں یاروں تک شیئر کر دیجیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دوستوں کی باتیں، شناشاؤں کی باتیں، عورتوں سے باتیں کرنا، دشمنوں سے باتیں کرنا۔ تو غزل کے لغوی معنی اگر بات کری جائے تو کس سے دوستوں باتیں کرنا؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ اور غزل کس لفظ سے نکلا ہے دوستو؟ غزال لفظ سے۔ کس سے؟ غزال۔ اور غزال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہرن کے ہوتے ہیں یا ہرن کے بچے کے ہوتے ہیں۔ اگلا دوستو، غزل کس لفظ سے نکلا ہے، کس لفظ سے بنا ہے؟ کس لفظ سے بنا ہے؟ غزالی یا غزالہ، غزیل یا پھر غزال؟ امید کہ اس کوشچن کا آنسر آپ لوگ کر چکے ہوں گے کیونکہ بہت ہی کوشچن ایزی اور آسان ہے۔ تو اس کوشچن کا آنسر کیا ہو جائے گا دوستو؟ غزال ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ غزال ہو جائے گا۔ تو دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اپنے دوستوں یاروں تک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور فٹافٹ سے آپ لوگ کمنٹ بھی کرتے چلیے گا۔ اگلا کوشچن آپ کی اسکرین پر حاضر ہے۔ سبھی سوال زبردست ہیں اور بہت ہی اہم سوالات آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، قافیہ یا قصیدہ؟
तो गज़ल के पहले शेर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मतला कहते हैं, जिसके दोनों शेर क्या होते हैं, हम काफ़िया होते हैं। क्या होते हैं, हम काफ़िया होते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को कैसे दोस्तों, गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतला। अगर बात करी जाए मक्ता की, तो मक्ता जो है गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं, और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस का मतलब क्या होता है, अपना शॉर्ट नेम, अपना मुख्तसर नाम मक्ता में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मतला क्या है, मक्ता क्या है। तो आपको कन्फ्यूज़न में दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि मीम के बाद तो दोस्तों क्या है, पहले है। जो पहले है तो वो क्या हो जाएगा, वो पहले आएगा। मीम के बाद काफ क्या है, बाद में है, तो ये क्या आ जाएगा, बाद में आएगा। अब मतला का मतलब क्या होता है, तुलू होने की जगह। इसके अगर लफ्ज़ी माना की तरफ अगर हम गौर करें तो मतला के माना होते हैं दोस्तों तुलू होने की जगह। तो जो तुलू होगा तो वही ना पहले होगा। तो दोस्तों और काफ़िया, तो मैंने हम आवाज़ अल्फाज को हम क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। क्या हम आवाज़, जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, क्या दोस्तों, हुआ क्या है। और अगला है आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इस दर्द की दवा क्या है, दवा क्या है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं हुआ और दवा, हुआ और दवा को हम क्या कहेंगे, हम काफ़िया कहेंगे। ये हम वज़न होते हैं, ये काफ़िया क्या होते हैं, हम वज़न होते हैं। और क्या है, ये बार बार आ रहा है, जो बार बार दोहराए उसे हम क्या कहेंगे, रदीफ़ कहेंगे। क्या कहेंगे, रदीफ़। काफ़िया की बात अगर करी जाए दोस्तों, तो काफ़िया के मतलब होते हैं पीछे पीछे आना। क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाला, पे दर पे आने वाले को हम काफ़िया कहते हैं। कसीदा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, कसीदा किसे कहते हैं। कसीदा किसी बादशाह वक्त के पास इनाम पाने के लालच से कहे जाने वाले को कसीदा कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम रुजू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गज़ल के दूसरे शेर में मतला होता है उसे क्या कहते हैं। गज़ल के दूसरे शेर में जो मतला होता है उसे हम क्या कहते हैं। गज़ल का दूसरा शेर जो होता है तो उसे हम कौन सा मतला कहेंगे, तो मतला, हुस्न मक्ता, हुस्न मतला या फिर मक्ता। तो यहाँ पर गज़ल के दूसरे शेर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, गज़ल के दूसरे शेर। तो गज़ल के दूसरे शेर को हम क्या कहेंगे दोस्तों, हुस्न मतला। क्या, हुस्न मतला, या मतला सानी भी कहते हैं। क्या, मतला सानी। मतला सानी का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूसरा। इसके अलावा तीसरा मतला को हम मतला सालिस कहते हैं। तो इस तरीके से एक वे में चला जाता है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये PDF कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बता दूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। दोनों मिसरे हम काफ़िया किस में होते हैं, मतला में होते हैं, रदीफ़ में होते हैं, मक्ता में होते हैं, क़ता में होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि दोनों मिसरे जो होते हैं हम काफ़िया होते हैं, वो किस पर होते हैं। तो हम काफ़िया जो होते हैं दोस्तों मतला में आते हैं। किस में, मतला में हम काफ़िया होते हैं। और रदीफ़ में तो क्या होता है, वो एक ही जैसा, एक बार बार दोहराया जाता है। किसी भी चीज़ को क्या किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या है, ये रदीफ़ है, रदीफ़ बार बार दोहराया जाता है। हुआ, दवा क्या होते हैं, हम वज़न होते हैं। और मतला, आप लोग घबराना नहीं है, बहुत ही आसान नहीं है और बहुत भी मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए आप लोग बने रहिएगा। अगले शेर में तखल्लुस होता है, उस शेर को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बखूबी कर दिए होंगे, कुछ लोग अगर नहीं कर दिए होंगे तो चलिए मैं बताता हूँ। आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं, मतला कहते हैं, या फिर काफ़िया कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, मक्ता। यहाँ पे आखिरी शेर जब भी आएगा तो वो मक्ता हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मक्ता हो जाएगा। क़ता करने के मतलब में आते हैं। अगला है रदीफ़। तो रदीफ़ आप लोगों ने समझ ही गया होगा। रदीफ़ मतलब जो एक ही चीज़ बार बार दोहराई जाती है उसे रदीफ़ कहते हैं। क्या है, इस तरीके से। अब मतला शुरू को, मतलब किस में होते हैं, शुरू में आते हैं। मतलब गज़ल के शुरू में आते हैं। अगला है बहुत ही आसान सा है, समझिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा को कहते हैं, क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं, काफ़िया कहते हैं, बहर कहते हैं, या फिर उरूज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं आप हुआ, और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप दवा, क्या देख रहे हैं, दवा। ये दोनों देखिए हम वज़न है। क्या है, हम वज़न है, एक ही वज़न में आया है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, काफ़िया कहेंगे। क्या कहेंगे, काफ़िया। काफ़िया का मतलब होता है
पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है, उसके लफ्ज़ी माना क्या होते हैं, पीछे पीछे चलने वाला, पे दर पे आने वाला। अगर दोस्तों हम रदीफ़ की बात करें तो रदीफ़ बार बार आना क्या होता है, बार बार आना या दोहराने को हम क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। उम्मीद कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुजू करते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। उम्मीद के आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोनों मिसरे के आखिर में क्या है आया है, इसको क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं, मतला कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं, मक्ता कहते हैं। उम्मीद कि आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जीम यानी रदीफ़ आपका हो जाएगा। और काफ़िया अगर इसके अंदर मैं पूछूं आपको काफ़िया क्या है तो क्या हो जाएगा, हुआ क्या है, और दवा यहाँ पर काफ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेर की पहले मिसरे को क्या कहते हैं। शेर की पहले मिसरे को क्या कहते हैं। मिसरा सानी, मिसरा सोम, मिसरा उला, मिसरा दुम। तो शेर के पहले मिसरे को क्या कहेंगे, पहले मिसरे को मिसरा उला, दूसरे मिसरे को मिसरा सानी या दोम, और तीसरे मिसरे को मिसरा साली या फिर मिसरा सोम कहेंगे। उम्मीद कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेर के दूसरे मिसरे को क्या कहते हैं। शेर के दूसरे मिसरे को क्या कहते हैं, मिसरा सानी, मिसरा सोम, मिसरा उला, मिसरा दोम। तो शेर के दूसरे मिसरे को हम क्या कहते हैं, तो मिसरा सानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मिसरा सानी कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, कमेंट करने में कोई कंजूसी ना कीजिएगा, उसमें आपकी भलाई है, उसमें सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट ज़रूर करें। जो अल्फाज मतला के दोनों मिसरे के आखिर में आए, क्या बोला जा रहा है, मतला बोला जा रहा है। मतला का मतलब शेर का शुरू, मतला का मतलब शेर का शुरू, और दोनों मिसरे के क्या आखिर में, क्या आखिर में, हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, काफ़िया, मतला, रदीफ़ या फिर मक्ता। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों रदीफ़ कहेंगे, क्योंकि आखिर में आने का काम कौन करता है, रदीफ़ करता है। कौन करता है, रदीफ़ करता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम रुजू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में गज़ल के हर शेर में एक ही वज़न और हरकत वाले अल्फाज बदल बदल कर आए। क्या, हरकत वाले अल्फाज क्या हो, बदल बदल कर आए, उन्हें क्या कहते हैं। काफ़िया, मतला या फिर रदीफ़ या फिर मक्ता। क्या कहते हैं, गज़ल एक ही वज़न और हरकत वाले अल्फाज बदल बदल कर आए। जैसे वहाँ पे आपने देखा था ना, दवा और हुआ, देख रहे हैं ना, बदल बदल करके आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, काफ़िया हो जाएगा। चलिए अब आसान लगने लगा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिन्फ़ शुग़ल में हर शेर का मतलब अलग अलग होता है। हर शेर का मतलब अलग अलग होता है। गज़ल में, नज़म में, मरसिया में, कसीदा में, किस सिन्फ़ शुग़ल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गज़ल में। किस में, गज़ल में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। अगला है अदब की रोशनी यूट्यूब चैनल पर अगर आप PDF हासिल करना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का क्या कर देंगे दोस्तों, हम लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर वहां से आपको PDF मुहैया करा दिया जाएगा। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।